নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ইতিমধ্যে আমি জনাই আহিছো প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বৃহৎ আক্ৰমণ বৃহৎ অভিযান পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ বালাকোটাত এই বৃহৎ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা মুঠ 1000 কিলোৰ বোমা নিক্ষেপ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ পুৱতি নিশা প্ৰায় 3:30 বজাত 12খন মিৰাজ 2000 যুদ্ধ বিমানেৰে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত প্ৰায় 300 সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত নিহত পাক সেনাৰ 5 জোৱান পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত জেইছ ই মহম্মদৰ ঘাটিত এই আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল জেইছ ই মহম্মদৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আলফা 3 এই আক্ৰমণ চলাই ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰা হৈছে So all of that are really happening, and even as we speak right now, the meeting of the CCA, the Cabinet Committee of Security, is taking place at the Prime Minister's LKM residence. Obviously, they will be briefed about what happened, what the nature of the operation. What is next? When do they publicly come out, and who is likely to publicly come out and say that what happened indeed did happen? ৰিমোটত প্ৰথম দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই আক্ৰমণ এই অভিযানৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে এক ৰুদ্ধতাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে আছে উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ পৰা এই তথ্য নিশ্চিত কৰা হৈছে প্ৰায় 200 পৰা 300 সন্ত্ৰাসবাদী নিপাত যোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে ইতিমধ্যে অজিত ডোভালে উল্লেখ কৰিছে সমস্ত তথ্য নিশ্চিত কৰিছে আৰু অজিত ডোভালে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰা দৃশ্য য'ত উপস্থিত আছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং এই সমগ্ৰ অপাৰেশ্যন সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিছে সেই পৰিকল্পনাৰ কথা কেনেদৰে এই আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল সমস্ত পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীক জনাইছে এই মুহূৰ্তত অজিত ডোভালে পুলৱামা আক্ৰমণৰ 12 দিন পিছত 12খন বিমানেৰে এই বৃহৎ অভিযান পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত জেইছ ই মহম্মদৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলাই এই বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় সুকলমে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ 12খনকৈ যুঁজাৰু বিমানেৰে এই আক্ৰমণ চলাই সুকলমে উভতি আহিবলৈ সক্ষম হয় 12খনকৈ যুঁজাৰু বিমান জেইছ ই মহম্মদৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আলফা 3 ধ্বংস হয় এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে পাকিস্তানৰ সেনাৰ মেজৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীক জনাব বায়ুসেনা প্ৰধানে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত এক বিশেষ বৈঠকত মিলিত হৈছে পুলৱামা আক্ৰমণৰ 12 দিনৰ পিছত 12খন বিমানেৰে এই সৰ্ববৃহৎ অভিযান সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ পৰিকল্পনা সমগ্ৰ অভিযান সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনাবলৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে অজিত ডোভাল লগতে আছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং পুৱতি নিশা 3:30 বজাত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা কেনেদৰে এই পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল সকলো তথ্য এই মুহূৰ্তত সদৰি কৰা হ'ব ইতিমধ্যে 200 পৰা 300 নিহত হোৱাৰ তথ্য প্ৰাথমিক তথ্য লাভ কৰা হৈছে পাকিস্তানী সূত্ৰই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰমণৰ তথ্য পাকিস্তানৰ মেজৰেও প্ৰকাশ কৰিছে এক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে পুলৱামা কাণ্ডৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে যেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল প্ৰতিজন শহীদৰ প্ৰতিটো পাল্টেজৰ হিচাপ লোৱা হ'ব ইয়াৰ বৃহৎ মূল্য ভৰিব লাগিব পাকিস্তানে আৰু তাৰ পিছতে পুলৱামা আক্ৰমণৰ 12 দিনৰ পিছত নিশা 12 বজাত 3:30 বজাত 12খনকৈ বিমানেৰে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে এক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ এক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতৰ শক্তি ভাৰতৰ পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জ্ঞাত হাৰে পিঅকেট এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই মুহূৰ্তৰ আপডেট প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জ্ঞাত হাৰে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত চিচিএছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত চিচিএছৰ বৈঠকত আৰু অধিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জ্ঞাত হাৰে পুনৰ জনাইছো পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত কালি পুৱতি নিশা সংঘটিত হোৱা এই আক্ৰমণৰ বিষয়ে অৱগত আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বায়ুসেনা আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত চিচিএছৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত পুনৰ আজিৰ চিচিএছৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে
সমগ্ৰ পৰিকল্পনাৰ কথা অৱগত কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান CCSৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে। পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত CCSৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সকলো ফালৰ পৰা চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে। পুলৱামা কাণ্ডৰ পাছত CCSৰ বৈঠকত কেইবাটাও কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। দ্য মষ্ট ফেভাৰ্ড নেশ্যনৰ মৰ্যাদা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল পাকিস্তানক আৰু তাৰ পিছতে এটাৰ পিছত আনটো কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। সকলো ফালৰ পৰা পাকিস্তানক শিকনি দিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এয়া যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পূৰ্বৰ CCSৰ বৈঠকত ভাৰতীয় সেনাক সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদ দমন কৰিবলৈ আৰু তাৰ পিছতে এয়া বৃহৎ সফলতা ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ। ভাৰতীয় সেনাৰ এই বৃহৎ সফলতা পুৱতি নিশা 3:30 বজাত এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ভয়ংকৰ অভিযান চলাবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনী। আৰু এই খণ্ডত অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ নেটৱৰ্ক 18ৰ সিনিয়ৰ ৰিপৰ্টাৰ অজিত সিঙৰ সৈতে। अजीत सिंह आपके साथ जुड़ चुके हैं अभी हम जी प्रदीप जी आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो बताइए क्या अपडेट है अभी आपके पास। नहीं देखिए, ये अपडेट तो धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं कि भारतीय एयरफोर्स ने सुबह 3:30 बजे POK में और खैबर पख्तूनख्वा जो है बालाकोट वहां पर हवाई हमले किए हैं। 12 मिराज विमान जो है वो गए थे और 1000 किलो का पेलोड का जो है वो बम गिराकर आए हैं। ये पाकिस्तान को सीधा जवाब है कि प्रॉक्सी वॉर के दिन गए। अब आप तय कर लीजिए कि हिंदुस्तान से आपको शांतिपूर्ण संबंध चाहिए या युद्ध चाहिए। अगर आप सुधरते नहीं हैं तो अब ऐसा नहीं होगा कि 26/11 आप कर दें, मुंबई में उस संसद पर हमला कर दें और भारत की ओर से कोई जवाब नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें जवाब दिया जाएगा और जितना आप नुकसान करेंगे भारत का उससे कई गुना ज्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक के समय पिछली जो है पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि कुछ ऐसा हुआ है। इस बार उनके पास इसका भी ऑप्शन नहीं था कि मना कर सके। ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय एयरफोर्स ने किस तरह से बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक किया है और हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ है। गए भारतीय एयरफोर्स के पायलट और निशाने पर हमला किया और लौट आए। तो ये पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं बोल सकती क्योंकि हमारी संसद का ये आम राय से पास प्रस्ताव है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो POK में हमला हुआ है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट में हमला हुआ है। ये पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी है। जी प्रदीप जी, जब पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद पूरे देशवासियों ने एक ही मांग उठाया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। तो इस बार जबरदस्त अंजाम दिया गया इस अभियान को, इस ऑपरेशन को। बिल्कुल, आपको याद होगा कि पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री ने कई पब्लिक मीटिंग्स में ये कहा था कि जो आग आपके दिल में जल रही है वही आग मेरे दिल में जल रही है और शहीदों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका जो है इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसको एहसास नहीं है अभी उसको कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और आज उसका देखिए 12 दिन में जो है पुलवामा का जवाब दे दिया गया, 10 दिन में उड़ी का जवाब दे दिया गया। तो ये नया भारत है, ये पुराना भारत नहीं है जहां हम हमारे ऊपर हमला हो और हम दुनिया भर में घूमे कि पाकिस्तान को रोकिए और उसको समझाइए। यहाँ हमले का जवाब उससे बड़े हमले से दिया जा रहा है। जी प्रदीप जी, हम जानना चाहेंगे जो कैजुअलिटीज का जो इंफॉर्मेशन सामने आया है 200 से 300 की मौत हो गया है, तो उसके क्या अपडेट है उसके हिसाब से। देखिए, अभी तो कोई ऑफिशियल फिगर आई नहीं है, अभी एयरफोर्स की कोई ब्रीफिंग नहीं हुई है, न सरकार की ओर से हुई है। मुझे लगता है कि सबसे पहले एयरफोर्स की ओर से ब्रीफिंग होगी तो उसमें जो विजुअल्स आएंगे उनके आधार पर बताया जाएगा। लेकिन एक अंदाजा है कि 250 से 300 आतंकवादियों को मारा है। इसके अलावा वो जैश का बहुत बड़ा कंट्रोल सेंटर था, उसको डिस्ट्रॉय किया है और वहां पर बड़े पहली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से आतंकवादी कैंप पीछे ले गए थे पाकिस्तान के लोग।
पाकिस्तान की सेना और जैश मिलकर वहां जाकर हमला किया है। ये दूरी लगभग 80-90 किलोमीटर तक की है, वहां तक पैदल सेना के लिए जाना संभव नहीं था, इसलिए एयर स्ट्राइक का सहारा लिया गया। अभी तक जो एक धारणा बनी हुई थी कि भारत एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, भारत एलओसी क्रॉस नहीं करेगा, भारत हवाई हमला नहीं करेगा, उस धारणा को नरेंद्र मोदी की सरकार ने तोड़ दिया है कि हमारे ऊपर हमला करोगे तो हर तरह से हमला करेंगे, वो चाहे आर्थिक नाकेबंदी का मामला हो या सैनिक शक्ति के इस्तेमाल का मामला हो। जी, बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देने में सफल रहा भारत। प्रदीप, हम अभी जानना चाहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये ऑपरेशन, क्योंकि 14 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे ये हमला हुआ था, तो कल 3:30 बजे जो वक्त बताया गया है, जो 3:30 बजे हमला हुआ है, तो उसके हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और 12 दिनों के बाद 12 विमानों से ये हमला किया गया है। बिल्कुल, देखिए, आप पहले दिन पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज देखिए। पहली बात उन्होंने कहा कि हमने अपनी सेनाओं के हाथ खोल दिए हैं। उनसे कहा गया है कि आपको अपनी चॉइस पर जब और जहां हमला करना हो कीजिए। इसके लिए तैयारी की गई, इसके लिए सैटेलाइट इमेजिंग का सहारा लिया गया कि कहां कैंप हैं, कहां ज्यादा लोग हैं, कहां स्ट्राइक करने से ज्यादा नुकसान होगा। ये सब तैयारी पिछले 10-12 दिन में की गई और उसके बाद हमला किया गया। जी, अभी जो सीसीएस का मीटिंग चल रहा है, तो उसका कुछ अपडेट, कुछ जानकारी आपके पास? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो मीटिंग चल ही रही है। जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक किसी को कैसे पता चल सकता है कि सीसीएस में क्या हो रहा। तो जाहिर है कि दो बातें तो होंगी, एक तो इस सफल हमले की जो है बधाई एयरफोर्स को और भारतीय सेना को। दूसरी बात ये होगी कि हमको भी अब थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस समय बहुत खिसियाया हुआ है, उसकी देश में और देश के बाहर बहुत किरकिरी हो रही है। ऐसे में वो बदला लेने के लिए कोई नया कदम उठा सकता है, तो उसके जवाब के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी ये जानकारी देने के लिए। আৰু সেয়া আছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰদীপ সিং, নেটৱৰ্ক 18ৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ সিঙে এই মুহূৰ্তত অপাৰেশ্যনৰ সকলো তথ্য আমাক জনাইছে। সুকলমে এই অপাৰেশ্যন সফলভাৱে অভিযান সামৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীয়ে। 12খনকৈ যুদ্ধ বিমান, 4টাকৈ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল য'ত আক্ৰমণ চলোৱা হ'ব, য'ত আছে দুৰ্ধৰ্ষ জঘন্য জৈশ ই মহম্মদৰ ঘাটি, আৰু সেই ঘাটি উচ্ছন কৰিবলৈ, সেই ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ পূৰ্বৰে পৰা অতি সন্তৰ্পণে, অতি গোপনে এই পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অৱগত কৰা হৈছিল এই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে, আৰু নিশা 3:30 বজাত এই সফল অভিযান সামৰি ভাৰতলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হয় 12খনকৈ যুঁজাৰু বিমান। পাকিস্তানত ভাৰতৰ আক্ৰমণ আৰু এক বৃহৎ সফল অভিযান ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অৱগত কৰা হৈছিল এই সমগ্ৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে, আৰু সেই অনুসৰি পুৱতি নিশা 3:30 বজাত এই ভয়ংকৰ অভিযান সামৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীয়ে। 4টাকৈ স্থান, কিছু দৃশ্য, শেহতীয়া কিছু দৃশ্য পুনৰ আমি দেখুৱাইছো। এয়া কেনেদৰে আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল, 1000 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বোমা বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হৈছিল সেই 4টাকৈ স্থানত, আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় এই 4টা স্থান। আৰু য'ৰ পৰা এই মুহূৰ্তত তথ্য লাভ কৰা হৈছে যে 200ৰ পৰা 300জনকৈ সন্ত্ৰাসবাদী নিপাত গৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত। পাক সেনাই এই কথা সদৰি কৰিছে, পাক সূত্ৰই সদৰি কৰিছে এই আক্ৰমণৰ কথা ইতিমধ্যে, আৰু শেহতীয়া কিছু দৃশ্য, ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত থকা জৈশ ই মহম্মদৰ কেইবাটাও শিবিৰ। ইয়াতে শিবিৰ স্থাপন কৰি ভাৰতত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰি আহিছিল। পুলৱামা কাণ্ডৰ 12 দিনৰ পিছত 12খনকৈ যুদ্ধ বিমানেৰে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতীয় সেনাই। ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বৰ চিচিএছৰ বৈঠকত ভাৰতৰ সেনাক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰিবলৈ। শ্বহীদৰ তেজ অথলে নাযায়, শ্বহীদৰ আত্মবলিদান অথলে নাযায়, আৰু তাৰে যেন যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ 12 দিনৰ পিছত দিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীয়ে। এলঅচি অতিক্ৰম কৰি 12খনকৈ বিমানে চলাই এই সফল অভিযান। পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত জৈশ ই মহম্মদৰ ঘাটিত এই বৃহৎ আক্ৰমণ। জৈশ ই মহম্মদৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আলফা 3 ধ্বংস হয় এই আক্ৰমণত। এলঅচিৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ গৈ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল। 21 মিনিট ধৰি চলিছিল এই আক্ৰমণ। জৈশ ই মহম্মদ, লস্কৰ ই তৈবা আৰু হিজবুল মুজাহিদিনৰ কেইবাটাও শিবিৰ ধ্বংস কৰা হয়। পুলৱামা আক্ৰমণৰ 12 দিন পিছত 12খন বিমানেৰে এই আক্ৰমণ। প্ৰধানমন্ত্ৰীক আক্ৰমণৰ বিষয়ে বিৱৰি ক'লে NSA অজিত ডোভালে।
দেশৰ প্ৰতিটো সীমান্তত হাই এলাৰ্ট ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে সন্মুখত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আছে এই আক্ৰমণৰ পিছত পুনৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই সকলো স্পৰ্শকাতৰ স্থানত এই মুহূৰ্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আক্ৰমণৰ ঘটনা ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে পাকিস্তানে টুইটাৰত আক্ৰমণৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে পাকিস্তান সেনাৰ মেজৰ জেনেৰেল আসিফ গফুৰে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে CCSৰ বৈঠক য'ত উপস্থিত আছে অজিত ডোভাল লগতে উপস্থিত আছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ লগতে উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বৈঠকৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় হয়তো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হৈছিল যে কঠোৰতকৈ কঠোৰ পন্থা হাতত লোৱা হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে দ্য মোষ্ট ফেভাৰ্ড নেশ্যনৰ মৰ্যাদা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ পাকিস্তানক সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা ঘূৰিয়া কৰাৰ বাবে সকলো কূটনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ এয়া বৃহৎ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল পাকিস্তানৰ বুকুত ভাৰতীয় সেনাই পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত এয়া ভয়ংকৰ আক্ৰমণ দেশৰ প্ৰতিটো সীমান্তত এই মুহূৰ্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰায় 49 জনকৈ জোৱান শ্বহীদ হয় পুলৱামা কাণ্ডত CRPFৰ কনভয়ত আক্ৰমণ চলাই 44 জনকৈ জোৱানৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লয় আৰু তাৰ পিছতেই জয়সি মহম্মদৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱাই মেজৰসহ 4 জনকৈ ভাৰতীয় জোৱানে আৰু 49 জন শ্বহীদৰ তেজৰ মূল্য এই মুহূৰ্তত পাকিস্তানে এনেদৰে ভৰিবলগীয়া হৈছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সন্মুখত কাবু হ'বলগীয়া হ'ল অৱশেষত পাকিস্তান বৰ্তমান অব্যাহত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত CCSৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত और मुहूर्त में जोगाजोग स्थापन करिছো नतुन दिल्ली पर सीनियर रिपोर्टर मनीषा प्रियमर सहित मनीषा क्या अपडेट है आपके पास अभी हम जानना चाहेंगे देखिए अपडेट तो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया गया है और बालाकोट के पास ये जैश का कैंप था जहां हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तानी रेडार सिस्टम को धता बताते हुए करीब 1000 किलो के करीब ये पेलोड वहां गिराए और ये बिल्कुल टारगेट सही रहा निशाना सही रहा 12 मिराज जेटों का इस्तेमाल किया गया इस स्ट्राइक में और ये 1000 किलोग्राम के करीब बॉम्ब जो है सीधे जैश के ठिकानों पे गिराए गए तो एक तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसमें अब इस बात पर अग्रीमेंट है कि टेरर के खिलाफ कोई भी राष्ट्र अपने मुल्क को बचाने के लिए एक्शन ले सकता है तो हिंदुस्तान का जो ये एक्शन है वो एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो भी उसको समझेगा कि अवाम के हित में मुल्क के हित में लिया गया ये एक्शन है जिसमें कि हमने किसी देश के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी है लेकिन जो टेरर से आप हमारे जीवन को हमारे हालात को हमारे मुल्क पे बार बार ये दरिंदगी का फसाना आप पैदा करते थे उस पे हिंदुस्तान ने आज करारा जवाब दिया है हिंदुस्तान के एयरफोर्स ने आज करारा जवाब दिया है और जी मनीषा जी इससे पहले भी करारा जवाब देने में सफल रहा था भारत जैसे कि 26/11 का हमला हो जैसे कि पठानकोट का हमला हो उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया उसके बाद सोचा गया था कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा लेकिन बार बार जख्म पर नमक डाल के आ रहा है पाकिस्तान तो इस बार जो हमला किया है भारत ने उसके बाद कुछ सबक सीखेगा पाकिस्तान देखिए इस बार जो किया गया है वो सीधा हमला जिन पाकिस्तान जो है वो दोहरी लड़ाई लड़ता है पाकिस्तान के पास एक ISI है एक आर्मी है लेकिन दूसरी जो लड़ाई है पाकिस्तान की वो अपने टेररिस्ट को पनाह देके है जिसमें मौलाना मसूद अजहर वगैरह है ये सब बहुत दहशतगर्द लोग हैं और इनको पाकिस्तान की जमीन पर मौका दिया जाता है कि वो अपना ऑपरेशन कर सकें तो ये दूसरी लड़ाई जो है इसको पाकिस्तान जस्टिफाई नहीं कर सकता कि क्यों आप अपने जमीन पर दहशतगर्दी का अड्डा बनाते हैं और इस पर वो इंटरनेशनली कहीं जस्टिफाई नहीं कर सकते तो अब तक जो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स रही उन सब से ये बेहतरीन नायाब तरीका है हिंदुस्तान का कि हमें किसी अवाम से दिक्कत नहीं हमें किसी के मुल्क से दिक्कत नहीं पर आप टेररिज्म के जरिए अगर भारत पर अटैक करते रहेंगे और नमक जैसे आपने कहा छिड़कते रहेंगे तो हम अपनी स्ट्राइक सीधे टेरर कैंप्स पे करेंगे और पाकिस्तान में अगर आप देखें उनकी मीडिया की तरफ देखें तो उनके पास अब कोई मौका नहीं रह गया कुछ कहने का वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तो
इन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर लिया और वो कहीं भी 1000 किलोग्राम जो है वो गिरा के चले गए और इससे कुछ हमारा घाटा भी नहीं हुआ। इसका मतलब पाकिस्तान ऑलरेडी डिफेंसिव पे है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते, कर भी नहीं सकते हैं कि उनके जमीन से जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स जो है वो ऑपरेट करते हैं। और वहीं हिंदुस्तान ने ठिकानों पर ही ये बॉम्बिंग जो है वो की है। कहीं न कहीं बहुत ही हाई लेवल इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है इन ठिकानों के एड्रेस और लोकेशन के बारे में। तो पाकिस्तान के पास अब अपॉर्चुनिटीज बड़ी कम है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इस बात पर एक होकर ये मानती है कि इस तरह के टेररिज्म के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए। ये केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखें तो अफगानिस्तान का मामला जो मसला है वो वास्तव में पाकिस्तान के जमीन से उपजी हुई टेररिज्म का है। तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का भी एक बड़ा इसमें एक रोल है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुश्किलें जो हैं वो डिप्लोमेटिकली भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि टेररिज्म को तो आप सपोर्ट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान अब कैसे कहेगा कि नहीं टेररिज्म को पनपने दें, ये बात ये स्टैंड कैसे ले सकता है। तो ये स्ट्राइक्स जो हैं ये आगे हैं काफी पीछे के सर्जिकल स्ट्राइक से, और खास करके चूंकि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के पास रास्ता बहुत कम है, वो ये नहीं कह सकता कि टेररिज्म को हमारे यहाँ पनपने दें। अब वो कहेगा कैसे? तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बड़े कम हैं। जी मनीषा, जो पुलवामा अटैक था, जो पुलवामा हमले था, उसके बाद देशवासियों ने एक ही मांग उठाया कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान पाल पोस रहे इस आतंकवाद को। उसके बाद ये बहुत ही सफल रहा ये अभियान, ये ऑपरेशन। तो उसके बाद भारत के ऊपर कुछ चैलेंजेस आएगा सिक्योरिटी मामले के ऊपर? नहीं, भारत के ऊपर तो अगर पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं तो हमारे ऊपर निरंतर सिक्योरिटी चैलेंज है, हम उसको एक दिन की बात ना समझें। अभी आप देखें, किसी को याद शायद ना हो, लेकिन भारत के डेमोक्रेसी पे, भारत के अवाम पे कितनी लड़ाइयां ये टेररिस्ट करते रहे। सुजात बुखारी राइजिंग कश्मीर के जर्नलिस्ट थे, उनको बेरहमी से मारा गया बिल्कुल। तो भारत में लोकतंत्र की आवाज बुलंद ना रहे, भारत में जो खुला माहौल है प्रेस का उसको इंटिमिडेट करें, इन सब के लिए टेररिज्म का हाथ जो है, टेररिज्म का हाथ पकड़ के और पाकिस्तान ऑपरेट करता रहा है। और ये एक आईएसआई की डिजाइन है जिसके जरिए वो अपने आप पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट पर भी दबाव बना के रखना चाहते हैं कि अगर हम सीधी लड़ाई नहीं कर सकते मिलिट्री के द्वारा, तो हम टेररिज्म के द्वारा एक लो इंटेंसिटी वॉर जो है इंडिया से एंगेज किए रखें। और इसमें वहां की आवाम का, इंडिया की आवाम का, इंडिया के लोकतंत्र का, इंडिया की डेमोक्रेसी पर वो कंटिन्यूअस अटैक करते रहते हैं। तो पुलवामा एक दहशत थी, लेकिन पाकिस्तान का टेररिज्म के जरिए अटैक हिंदुस्तान पर बना रहता है और इसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मसूद अजहर जैसे लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ये समझौता होना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है वो एकदम से लोकतंत्र के लिए और अंतर्राष्ट्रीय इसके लिए खतरा है। अब कसम का मामला अगर आप देख लें, पाकिस्तान ने कभी माना नहीं कि वो पाकिस्तानी है, उनकी डेड बॉडी भी लेने वो नहीं आए। तो पाकिस्तान मानता है कि नहीं मानता है, अब इस बात पर हम बहुत गौर नहीं फरमा सकते और टेररिज्म के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी मनीषा जी, फिर से हम जानना चाहेंगे जो ऑपरेशन, जो सफल रहा जो ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के बारे में फिर से जानना चाहेंगे। जो पाकिस्तान की सरहद पर घुस के भारत ने यह सफल अभियान करने को मतलब सफल रहा है, तो उस अभियान के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ये अभियान जो है ये भारत के एयरफोर्स द्वारा किया गया, फॉर्मेशन में भारत का एयरफोर्स गया और इस तरह से गया कि पाकिस्तानी रेडार सिस्टम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाई। देर रात ये कार्रवाई हुई और ये बिल्कुल बालाकोट के आगे जहां जैश के ठिकाने थे, लाइन ऑफ कंट्रोल से उधर, वहां जाकर के 1000 किलोग्राम का पेलोड जो था वो बिल्कुल ठिकाने पे जैश ए मोहम्मद के गिराया गया। मतलब इसका ये है कि पहले से भारत के पास अमूमन इंटेलिजेंस की जानकारी बेहतरीन थी कि कहाँ जैश के ठिकाने हैं और इन ठिकानों के हिसाब से ये बम जो है वहां गिराए गए। और ये जो ये थे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे, ये मिराज एयरक्राफ्ट थे, इनका काफी हिस्सा भारत के डीआरडीओ में अनुसंधान किया गया है और बनाया गया है। तो एक तरह से अभी तक मैं ये मानूंगी, मैं सक्सेस और इन चीजों की बात नहीं करती, लेकिन कम से कम भारत की अच्छी कैपेसिटी डिमॉन्स्ट्रेट हुई है और आने वालों में देखना है
कि पाकिस्तान अब किन हरकतों से इन मामलों पे वो एक्ट जी करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी ये जानकारी देने के लिए और भारते निजर शक्ति प्रदर्शन কৰিবলৈ এনেদৰে সক্ষম হল পাকিস্তানৰ সন্মুখত আৰু পাকিস্তানক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেনেদৰে উল্লেখ কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে পুলৱামা আক্ৰমণৰ 12 দিনৰ পিছত 12খন যুদ্ধ বিমানেৰে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম হল 200 পৰা 300 নিহত হোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে।